سب سیکشن 11A FPR ریفنڈ سیٹلمنٹ کمپنی لمیٹڈ. سو اس سے کیا مراد ہو کہہ رہے ہیں مینز اے کمپنی ود دس نیم ایز انکارپوریٹڈ انڈر دا کمپنی ایکٹ 2017. اس سے مراد ہے وہ کمپنی جو کہ کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت رجسٹرڈ ہوئی ہو. یعنی ایف پی آر ریفنڈ سیٹلمنٹ کمپنی لمیٹڈ سے مراد بیسکلی وہ کمپنی ہے جو کہ رجسٹرڈ ہوئی ہو اسی نیم کے ساتھ. مطلب جو نام اس کا بتایا ہوا ہے ایف پی آر سیٹلمنٹ کمپنی لمیٹڈ, اسی نیم کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہوئی ہو کس قانون کے تحت, کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت. اب یہ کمپنی کیوں اسٹیبلش کی جاتی ہے, سو وہ نیکسٹ فردر اسی ڈیفینیشن میں بتا رہے ہیں کہ فار دا پرپز آف سیٹلمنٹ آف دا سیل ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس ریفنڈ کلیمس. اٹس مین یہ کہ یہ جو بھی مطلب جو ٹیکس پیئر ہے آیا وہ سیل ٹیکس کے اندر یا انکم ٹیکس کے تحت اس نے کچھ ایکسٹرا ٹیکس پے کر دیا, جتنا اس پر لائبلٹی نہیں تھی اس سے زیادہ اس نے پے کر دیا, تو جو چیز ایکسٹرا ہو وہ ریفنڈ ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایکسٹرا پے کر دیا اس کے حوالے سے جب انہوں نے ریفنڈ کلیم کرنا ہے ٹیکس پیئر نے, تو اس کی سیٹلمنٹ پرپسز کے لیے کہ اس ریفنڈ کے کلیمز کو کس طرح سیٹل کیا جائے گا آیا ٹیکس اتھارٹی اور ٹیکس پیئر کے درمیان, اس پرپز کے لیے یہ ایف پی آر ریفنڈ سیٹلمنٹ کمپنی لمیٹڈ اسٹیبلش کی جاتی ہیں. مزید اس میں انکلوڈنگ پیمنٹ بائی وے آف ایشو ریفنڈ بونڈ انڈر سیکشن 67A, یعنی اسی سیٹلمنٹ آف ریفنڈ کلیمز میں یہ والے کلیم بھی شامل ہیں. مطلب جب آپ کو ریفنڈ بورڈ کے تھرو پیمنٹ کر دی جاتی ہے سیکشن 67A کے تحت. یہ بیسکلی اس سینیریو سے ڈیل کرتا ہے کہ جب یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں نا, یہی ایف پی آر ریفنڈ سیٹلمنٹ کمپنی, یہ بیسکلی ٹیکس پیئر کو جو اس نے ٹیکس اتھارٹی سے جو اس نے ایکسٹرا ٹیکس پے کر دیا ہوتا ہے نا, اسے ریفنڈ چاہیے ہوتا ہے اور وہ کلیم کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اسے ریفنڈ بورڈ جاری کر دیتی ہیں سیکشن 67A آف دس لا, یعنی سیل ٹیکس ایکٹ 1990, اور اسے کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو ریفنڈ بورڈ کے تھرو پیمنٹ کر دی, اب جو پیسے آپ نے لینے تھے وہ ہم خود ہی یہ ٹیکس اتھارٹی سے لے لیں گے. سو ایف پی آر ریفنڈ سیٹلمنٹ کمپنی لمیٹڈ کو اگر دوبارہ ایکسپلین کریں تو اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ اس سے مراد ہے یہ وہ کمپنی جو کہ اسی نیم کے تحت یعنی ایف پی آر ریفنڈ سیٹلمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے نیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئی ہو انڈر دا کمپنی ایکٹ 2017. کس لیے رجسٹر ہوتی ہے, اس لیے رجسٹر ہوتی ہے کہ آیا انکم ٹیکس اتھارٹیز اور ٹیکس پیئر کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہے کس چیز کے حوالے سے کہ جو انہوں نے ٹیکس زیادہ پے کر دیا وہ انہیں ریفنڈ کلیم کرنا چاہتے ہیں اس اوور پیڈ ٹیکس کا, تو وہ جو سیٹلمنٹ ہونی ہے اس پیڈ ٹیکس کی اس کے ریفنڈ کے ذریعے اس کلیم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کمپنی اسٹیبلش ہوتی ہیں. اور اس میں وہ بھی چیز شامل ہے کہ لائک اگر آپ کا یہی ریفنڈ کا کلیم اگر وہ کمپنی خود ہی آپ کو ریفنڈ بورڈ جاری کر دے اس سیکشن 67A کے تحت پیمنٹ کر دے تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے. تو آئی ہوپ سب سیکشن 11 سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ہے سب سیکشن 11B. اس سے مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ فرم کیا ہے, بیسکلی فرم کیا ہوتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں مینز اے ریلیشن بٹوین پرسن who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. So فرم سے مراد ہے, فرم سے کیا مراد ہے, فرم سے مراد ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ پرسنس کے درمیان ریلیشن شپ ہے اور بزنس ریلیشن شپ ہے بیسکلی ان کے درمیان, جس کے تحت وہ ایگری ہیں کہ جو بزنس چل رہا ہے ہم لوگوں کا آیا سب چلا رہے ہیں یا کوئی ایک پارٹی چلا رہی ہے, یعنی ایک ایکٹیو ہے باقی سب ڈورمنٹ پارٹنر ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بزنس کے نتیجے میں جو بھی بزنس میں پروفٹ آئے گا نا وہ اب ہم لوگ شیئر کریں گے آپس میں, تو اسے ہم فرم کہتے ہیں. سو فرم بیسکلی یہ ہے کہ جب بزنس ریلیشن شپ ہو دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان اور اس بزنس کو رن کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی چلا رہی ہو یا ساری چلا رہی ہوں. اب ایک پارٹی چلا رہی ہے اس کا مطلب ایک ایکٹیو ہے باقی سب ڈورمنٹ ہے, اور اگر سب چلا رہے ہیں تو سب ایکٹیو پارٹنر ہے, کوئی ڈورمنٹ پارٹنر نہیں, کوئی سلیپنگ پارٹنر نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی پاسبلٹی میں کہہ رہے ہیں جو بزنس ہم لوگ مل کر چلا رہے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ سب مل کے چلا رہے ہیں تو اس کا منافع بھی پھر سب مل کر کھائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے پروفٹ آئے گا اس پہ وہ ایگری ہیں کہ وہ پروفٹ ہم لوگ شیئر کریں گے, اسے فرم کہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان ایسا ریلیشن جس کے تحت وہ ایگری ہیں کہ جو انہیں بزنس جو کہ تمام لوگ چلا رہے ہیں یا کوئی ایک چلا رہا ہے اس بزنس کے نتیجے میں جو پروفٹ آئے گا وہ ہم لوگ آپس میں شیئر کریں گے, اس طرح کا ریلیشن اگر لوگوں کے درمیان ہو تو اسے ہم فرم کہتے ہیں قانون کی زبان میں. نیکسٹ ہے سب سیکشن 12. کہتے ہیں گڈس انکلوڈ ایوری کائنڈ آف موویبل پراپرٹی ادر دین ایکشنیبل کلیم منی اسٹاک شیئر اینڈ سیکورٹی. سو اس ڈیفینیشن میں آپ کو دو چیزیں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں, ایک ہے جنرل ایک ایکسیپشن. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ گڈس میں ہر طرح کی موویبل پراپرٹی آ جائے گی, لیکن
ना उसमें स्टॉक आएँगे, ना उसमें शेयर आएँगे, ना इसकी सिक्योरिटी, यानी ना उसमें फाइनेंशियल एसेट आएँगे जिनको आसानी से पैसों में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना उसमें मनी आएगी, यानी कि पैसे वगैरह भी नहीं आएँगे उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी में, और ना ही उसमें एक्शनेबल क्लेम आएँगे। बाकी सारी चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर की जाएँगी। इट्स मीन ये हुआ कि जो एक्शनेबल क्लेम, मनी, स्टॉक, शेयर एंड सिक्योरिटीज़ के इन चीज़ों के ऊपर सेल टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होता। इनको छोड़ के जो बाकी सारी मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी जो कि वो गुड्स कंसीडर होंगी, तो गुड्स के ऊपर ये टैक्स लगता है सेल टैक्स, उनके ऊपर फिर सेल टैक्स लगेगा। अब यहाँ पर कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसको एक्सप्लेन होने की ज़रूरत है सिवाय एक्शनेबल क्लेम के। सो एक्शनेबल क्लेम बेसिकली क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम ये होता है कि आपका किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई डेब्ट या कोई इंटरेस्ट है, तो वो जो डेब्ट और इंटरेस्ट आप किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हो, उसे आप एक्शनेबल क्लेम कहते हो। लेकिन वो एक्शनेबल क्लेम इस कानून के तहत गुड्स नहीं लग कंसीडर किया जाता, और जब वो गुड्स नहीं कंसीडर किया जाता तो उस पर सेल टैक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि सेल टैक्स लगता ही सिर्फ गुड्स पर है, उनकी सप्लाई पर है। अब सप्लाई उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके भी हो सकती है, कंज़म्पशन करके भी हो सकती है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन किसी भी तरह हो सकती है, ये हम लोग प्रीएम्बल में पढ़ चुके हैं। अब आपको एक्शनेबल क्लेम का तो मैंने बता दिया कि आपका किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी में किसी किस्म का कोई डेब्ट और इंटरेस्ट हो, तो वो आपका एक्शनेबल क्लेम होता है। लेकिन आपको इसको ज़रा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो। तो इसको हम लोग ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल इसकी ये है कि मिसाल इसकी ये है कि मिसाल के तौर पर 2 तरह के डेब्ट होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डेब्ट और एक होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट। सो 2 तरह के डेब्ट होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डेब्ट और एक होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट। सिक्योर्ड डेब्ट जैसे कि हम लोग प्लेज और मॉर्गेज की सिचुएशन में आता है कि आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर किसी को गिरवी रखते हो तो वो मॉर्गेज है, और इसी तरह अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तो वो प्लेज है। तो वहाँ पर आता है आपका सिक्योर डेब्ट कि आपका चार्ज आ गया है किसी चीज़ पे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लेते हो। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज या प्लेज करके, तो आप उस सबूत के तौर पर उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेते हो और उसे पैसे दे देते हो कि अब आपका चार्ज आ गया है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। वो बंदा जब तक आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करेगा, मतलब डेब्ट अमाउंट नहीं पे करेगा जो उसने आपसे लोन लिया इन चीज़ों को गिरवी रखने में, तब तक वो आगे अपनी प्रॉपर्टी को फर्दर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। ये होता है सिक्योर डेब्ट, जब कोई सिक्योरिटी वगैरह लेके, जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेके किया जाता है। एक होता है अनसिक्योर डेब्ट, जिसमें अगर एक पर्सन आपको जस्ट ट्रस्ट की बेस पे लोन वगैरह दे देता है क्योंकि उसे आप पर ट्रस्ट होता है, तो वो होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट। और वही सिनेरियो होता है बेसिकली एक्शनेबल क्लेम में कि अगर आप अपने फलां कोई दोस्त किसी दोस्त से उधार ले ले और वो उसको ट्रस्ट की बेस पे कि हाँ ये मेरा दोस्त है मुझे पैसे रिटर्न कर देगा, और वो कोई उसके साथ कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट भी ना करे, कोई मुआहदा वगैरह ना करे कि हाँ इसने मेरे पैसे वगैरह देने हैं, और उसे ट्रस्ट की बेस पर पैसे दे दे, तो वो एक्शनेबल क्लेम, वो अनसिक्योर डेब्ट होता है। और ये एक्शनेबल क्लेम की ये एग्जांपल है। यहाँ पर जब अब आपका उसने आपका उसकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि उसने आपको पैसे देने हैं, चार्ज तो क्रिएट हुआ है, लेकिन वो आप की मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर की जाएगी। ये बेसिकली एक्शनेबल क्लेम कहलाता है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट है, चलते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 ए की तरफ। तो वो कहता है ग्रील इंडस्ट्री। ग्रील इंडस्ट्री से क्या मुराद है? वो कह रहे हैं इन रिलेशन टू द इल्ट्री एट द सीरियल नंबर 150 ऑफ द टेबल 1 ऑफ द 6th शेड्यूल, मतलब कि जो 6 शेड्यूल के टेबल 1 में सीरियल नंबर 150 में जो एंट्री की गई है उससे मुतल्लिका अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ग्रीन इंडस्ट्री से मुराद बेसिकली वो कह रहे हैं एक ऐसी नई इंडस्ट्री है, एक ऐसा न्यू इंडस्ट्रियल बिजनेस है जो कि set up on a land which not previously been utilized for any commercial, industrial, manufacturing activity and is free from constraint imposed by any prior work. So वो कह रहे हैं कि ग्रीन इंडस्ट्री से मुराद बेसिकली एक ऐसा न्यू इंडस्ट्रियल बिजनेस या किसी न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है जो कि किसी ऐसे लैंड पर फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हो रही है जहां पर उससे पहले वो लैंड किसी भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। मतलब वो ऐसी लैंड के ऊपर वो बिल्डिंग बनी है, वो न्यू इंडस्ट्री किसी ऐसी लैंड पर इस्टेब्लिश हुई है जिस लैंड पर उससे पहले किसी किस्म की कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं चल रही थी, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं चल रही थी, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल रही थी। एंड इट्स फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट इम्पोज बाय एनी प्रीरियर वर्क। और इसी तरह कोई पहला कोई काम वगैरह था तो उसकी पाबंदी भी नहीं थी उस लैंड के ऊपर। वो लैंड बिल्कुल, मतलब वो कह रहे हो कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लैंड है जहाँ पर आपने कोई इंडस्ट्री नई लगाई है, और उससे पहले उस लैंड के ऊपर
किसी किस्म की कोई कारोबारी एक्टिविटी नहीं चल रही थी, ना किसी कोई कारोबारी एक्टिविटी की कोई पाबंदी थी उस पर पहले से। क्लाउज टू, bullet without demolishing, revamping, renovating, upgrading, remodeling or modifying any existing structure, facility or plant। और ना ही कोई पहले से मौजूद प्लाट था, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था या कोई फैसिलिटी थी, उसमें आपने थोड़ी बहुत अपग्रेडिंग, रिमॉडलिंग और मॉडिफाई की हो, या उसे डिमोलिश करके नया बनाया हो, या रेनोवेट किया हो, या रिवैम्पिंग की गई हो। रिवैम्पिंग का मतलब होता है इस्लाह करना। सो वो कह रहे हैं कि ग्रीन इंडस्ट्री से मुराद एक ऐसी नई इंडस्ट्री है जो कि किसी ऐसे लैंड पर बने कि उससे पहले उस लैंड पर कोई किसी किस्म की कोई कारोबारी एक्टिविटी नहीं थी, ना कोई इंडस्ट्रियल, ना कोई मैन्युफैक्चरर, ना कोई कमर्शियल, और ना ही उस पर कोई पाबंदी थी पहले किसी कारोबारी एक्टिविटी की। तो और उसके अलावा कि वो जो है वो पहले से किसी मौजूद कोई जो पहले से मौजूद कोई फैसिलिटी मौजूद थी, कोई प्लाट मौजूद था या कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर मौजूद था, उस पे आपने अपग्रेडिंग करके या उसको डिमोलिश करके गिरा के नया बनाया हो, या अपग्रेड किया हो, या रिमॉडलिंग की हो, कुछ इस तरह का भी सीन ला हो। मतलब आप कुछ ग्रीन इंडस्ट्री से मुराद एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पहले कोई किसी जगह पे कोई लैंड पे कोई कोई बिजनेस एक्टिविटी चल रही, आपने अपना एक लैंड खरीदा और वहां पर आपने उसकी बिल्डिंग बनाई, और ना ही ये था कि बल्बा खड़ा हुआ था और आपको ये फैसिलिटी स्ट्रक्चर बना बनाया मिल गया, आपने उसको अब किसी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर चेंज कर दिया। उसका वो कहना चाह रहे हैं कि उसका बिल्कुल अपना स्ट्रक्चर मॉडल, बिल्कुल बिल्डिंग का मॉडल अपना हो, जो वो चीज़ें इस्तेमाल करी वो अपनी हो, न्यू हो, ब्रांड न्यू चीज़। तो नेक्स्ट उस पर आ जाता है कि भाई not formed by the splitting up or reconstitution of undertaking already in existence by or transfer of machinery, plant or building from an undertaking, not formed by the splitting up or reconstitution of an undertaking already in existence, or by transfer of machinery, plant or building from an undertaking established in Pakistan period to the commencement of the new business and is not a part of an expansion project। So ये होता है ना कि हम कहते हैं कि ये ये जो एक हमारी ये बिल्डिंग है और हमारी ही इसी कंपनी की सेम ब्रांच यहाँ पर भी है, तो वो उसी का नया प्रोजेक्ट होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन इंडस्ट्री में बेसिकली एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी बिजनेस एंटाइटी ग्रीन इंडस्ट्री कंसीडर की जाएगी जो कि पहले से, इसके बनने से पहले पाकिस्तान में कोई बिजनेस मौजूद था, तो वहाँ से ही वो कह रहे हैं कि आप वहाँ से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब वहाँ से मेंबर ना, उसका स्टाफ भी वहाँ से ना आ रहा हो, और ना ही वो कह रहे हैं कि वहाँ से ही मशीनरी आप उठा के लेकर आ रहे हैं, कोई प्लांट और बिल्डिंग लेकर आ रहे हैं, मतलब पहले से मौजूद कोई बिजनेस है उसी से आप लोग अपना स्टाफ लेकर आ रहे हो, उसी से वहाँ से ही आप प्लांट और मशीनरी उठा के लेकर आ रहे हो, उसी की बिल्डिंग को ही आप या तो स्प्लिट कर रहे हो, पार्ट्स बना रहे हो। इस तरह का सिनेरियो नहीं होना चाहिए ग्रीन इंडस्ट्री में। एंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एन स्पेशल प्रोजेक्ट, यानी कि एक कंपनी है, पहले से कोई इंडस्ट्री लगी हुई है और उसी का वो आगे कहते हैं कि ये हमारी ब्रांच है। तो अगर वो इस कोई किसी कोई यूनिट लगा हुआ है और आगे उनकी कोई ब्रांच बनती है, तो उसे हम ग्रीन इंडस्ट्री नहीं कहेंगे। Point 4, using any process or technology that has not earlier been used in Pakistan and is approved by the Algerian Development Board। वो कह रहे हैं इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही हो जो कि पाकिस्तान में पहले ला इस्तेमाल की गई हो और इसको अल्जीरियन डेवलपमेंट बोर्ड भी अप्रूव कर दे, तो उसे हम ग्रिल इंडस्ट्री कहेंगे। सो ग्रिल इंडस्ट्री होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? ग्रिल इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप ग्रिल इंडस्ट्री का इफ्तिताह करो किसी ऐसी बिल्डिंग पर जिस बिल्डिंग पर उससे पहले किसी किस्म की इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ना हो, और ना ही उस पर कोई पहला कोई कहा था उसकी तरफ से कोई पाबंदी हो। मतलब ये ना हो कि किसी ने वो बिल्डिंग ले के रखी हुई हो कि यहाँ पर हमने अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, वो आपने शुरू से ही अपने लिए एक ज़मीन ली हो जहाँ पर वो हर तरह के किसी किस्म के चार्ज से पाक हो, मतलब उस पर किसी किस्म की कोई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ना हो। फिर वो कह रहे हैं कि ये भी होना ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बला बनाया वल्बा स्ट्रक्चर वगैरह ले लो कि हम इसी के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे, रीमॉडल कर देंगे, नहीं, आपने शुरू से अपनी वो बिल्डिंग बना ली है। या फिर पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने वाला सिनेरियो भी ग्रिल इंडस्ट्री में नहीं कंसीडर किया जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग तो आपकी बन गई जो कि एक ब्रांड न्यू जगह पर होनी चाहिए, आपकी ही बनी हुई हो, आपने ना वो गिरा के नई बनाई हो, ना पहली वाली को थोड़ा सा रेनोवेट करके बनाई हो, ना किसी और की जगह पे बनाई हो, नई बिल्डिंग पे नई लैंड पे आपने जहाँ पर किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थी वहाँ पर आपने अपनी इंडस्ट्री बनाई। अब वो कह रहे जो इंडस्ट्री तो बन गई, अब उस इंडस्ट्री के अंदर जो स्टाफ वाला है, जो इक्विपमेंट्स यानी मशीनरी और प्लांट यूज़ हो रही
ہے وہ بھی کوئی پہلے سے وجود کسی جو اس کوئی انڈسٹری ہے وہاں سے اٹھا کے نہیں لے کر آلا، وہ بھی آپ کا برانڈ نیو ہونا چاہیے، اپنا ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی یہ جو آپ کی انڈسٹری آپ لگا رہے ہو وہ پہلے سے کسی وجود انڈسٹری کی ایکسپینشن ہونی چاہیے۔ جیسے کہ وہ براج کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر سال کے طور پر اگر